and welcome to my YouTube channel. I'm going to upload the whole syllabus of anatomy, including upper limb, lower limb, thorax, abdomen, pelvis, as well as CNS. I've already completed the lower limb session and I've started with the abdomen and pelvis session. Our today's topic is urinary bladder. Let's begin with the introduction. What is urinary bladder? It is a muscular reservoir of urine, which means it contains urine. Anterior part of the pelvic cavity. It lies in the anterior part of the pelvic cavity. Now size, shape and its position. Bladder varies in its size, shape and position according to the amount of urine it contains. So it is like a balloon. It varies in size, shape as well as position. How much it depends on how much urine it contains. Then when empty, it lies entirely within the pelvis, and when it is filled, it extends up to the abdominal cavity, reaching up to the umbilicus or even higher. So which depends upon the amount of urine present in the urinary bladder. When it is empty, its original position is within the pelvis only, and when it is filled, it can extend upwards into the abdominal cavity, it can reach to the umbilicus as well as it can go higher. External features: an empty bladder is tetrahedral in shape and a full bladder is ovoid in shape. So the shape also depends upon the amount of urine. Now an empty bladder has a base, apex, neck, surfaces and borders. Apex, which is directed forward, base or the fundus, which is directed backwards, neck, which is the lowest and the most fixed part of the bladder. Then surfaces, it has three surfaces: superior, right and left, inferior lateral surface. This is superior surface, right and left, inferior lateral surface. Then four borders, one anterior, one posterior and two lateral borders. Now full bladder is ovoid in shape. It has an apex which is directed upwards towards the umbilicus. Because it is full, so it can extend to the umbilicus. So its apex is directed towards the umbilicus. The neck is the lowest part, so it is directed downwards, and it has two surfaces, anterior and posterior surface. Now its relations: apex, which is related to the median umbilical ligament. This is the apex which is related to the median umbilical ligament. Base in female, this is the base of the bladder. It is related to the cervix and vagina. In male, it is related to the upper part which is separated from the rectum by the rectovesical pouch, which contains the coils of the intestine. The rectovesical pouch, which is formed between the rectum and the urinary bladder. Female, it is related to cervix and vagina, and the base in males, it is separated from rectum by the rectovesical pouch, which contains the coils of the intestine. So मेल में इसका जो बेस होता है वो सेपरेटेड हो जाता है रेक्टोवेसाइकल पाउच की वजह से. लोअर पार्ट में सेमिनल वेसिकल्स एंड वासा डेफरेंस से रिलेटेड होता है. It has a triangular area between the ductus deferens, which is separated from the rectum by the rectovesical fascia of Denon-Willis. तो रेक्टोवेसाइकल फेशिया को फेशिया ऑफ डिनोनिलस बोलते हैं. एक ट्रायंगुलर एरिया होता है जो डक्टस डेफरेंस के बिटवीन डक्टस डेफरेंस में जो सेपरेटेड होता है फ्रॉम द रेक्टम, जो रेक्टम से सेपरेटेड होता है बाय द रेक्टोवेसाइकल पाउच. Now neck, which is the most fixed part, जो 3 से 4 सेंटीमीटर behind the lower part of pubic symphysis lie करता है above the plane of pelvic outlet के ऊपर. In males और in females neck के जो relations है वो different होते हैं. In males neck is surrounded by smooth muscle bundle, preprostatic urethra. Preprostatic sphincter होता है which is devoid of parasympathetic cholinergic nerves. ये एक की पॉइंट है, इसके ऊपर एमसीक्यू भी आ सकता है. प्री प्रोस्टेटिक स्फिंक्टर इज डिवॉइड ऑफ पैरासिम्पैथेटिक कोलिनर्जिक नर्व्स. इन फीमेल्स नेक इज रिलेटेड टू द pelvic fascia which surrounds the upper part of the urethra. Now superior surface: in males it is completely covered with the peritoneum and it is in contact with the sigmoid colon and the coil of the ilium. In females, peritoneum covers the greater part except the small area near the posterior border which is related to the supravaginal part of the cervix. तो cervix का जो upper part होता है ना वहाँ पे पेरिटोनियम पूरा कवर करता है एक्सेप्ट द स्मॉल एरिया. सिर्फ जो ब्लैडर है उसका छोटा सा एरिया जो रिलेटेड होता है टू द सुप्रावेजिनल पार्ट ऑफ द सर्विक्स है. ये अगर क्रॉस सेक्शन में देखें तो ये आपका ब्लैडर होता है, ये यूटरस होता है, इसके सर्विक्स और ये वजाइना और यहाँ पे रेक्टम होता है.
तो इसमें क्या बोला, पेरिटोनियम कवर करता है ग्रेटर पार्ट को, पूरे ग्रेटर पार्ट को कवर करता है एक्सेप्ट द स्मॉल एरिया नियर द पोस्टीरियर बॉर्डर। ये ब्लैडर का पोस्टीरियर बॉर्डर, इसका एक छोटा सा एरिया जो रिलेटेड होता है टू द सुप्रावजाइनल पार्ट ऑफ द सर्विक्स है। इधर सर्विक्स होता है, सर्विक्स का सुप्रावजाइनल पार्ट होता है, इंफ्रावजाइनल पार्ट होता है। सुप्रावजाइनल इंफ्रावजाइनल मतलब जो वजाइनल पार्ट होता है, जो वजाइनल से रिलेटेड होता है। तो एक छोटा सा एरिया जो कि सुप्रावजाइनल पार्ट से रिलेटेड होता है, वो छोड़ के बाकी पेरिटोनियम है पूरा कवर करता है ब्लैडर को फीमेल्स में। नाउ इंफीरियर लेटरल सरफेस, जो इंफीरियर लेटरल सरफेस होता है, ये दो जो अगर हमने यूरिनरी ब्लैडर को नीचे से देखा तो ये दो उसकी इंफीरियर लेटरल सरफेस है। तो ये दो जो इंफीरियर लेटरल सरफेस है इनके भी रिलेशंस डिफरेंट होते हैं मेल्स में और फीमेल्स में। मेल्स में प्यूबिस, प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट, रेक्टोप्यूबिक, रेट्रोप्यूबिक फैट, लिवेटर एंड ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल। फीमेल में भी सेम होता है, बट मेल्स में प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, इसका प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट। फीमेल में क्या होता है, प्यूबोवेसाइकल लिगामेंट होता है, ब्लैडर और प्यूबिस से रिलेटेड। तो प्यूबोवेसाइकल लिगामेंट एंड प्यूबिस प्रोस्टैटिक और प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट, ये डिफरेंस है मेल्स और फीमेल्स के रिलेशन में, बाकी सेम है। लिगामेंट्स ऑफ ब्लैडर, अभी ब्लैडर के ट्रू लिगामेंट्स होते हैं और फॉल्स लिगामेंट होता है। तो ट्रू लिगामेंट में क्या क्या आता है, लेटरल प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट, मीडियल प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट। प्यूबोप्रोस्टैटिक के दो आते हैं, एक लेटरल और एक मीडियल। फिर लेटरल ट्रू लिगामेंट, पोस्टीरियर ट्रू लिगामेंट। लेटरल और पोस्टीरियर दो ट्रू लिगामेंट, लेटरल मीडियल दो प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट, लेटरल मीडियल नहीं, मीडियल के बदले पोस्टीरियर दो ट्रू लिगामेंट और एक मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट जो अपेक्स से रिलेटेड हो। फॉल्स लिगामेंट के अंदर क्या आएगा, लेटरल फॉल्स, पोस्टीरियर फॉल्स। जैसे इसके अंदर लेटरल ट्रू पोस्टीरियर ट्रू था, इसमें लेटरल फॉल्स पोस्टीरियर फॉल्स था। मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट था, इसमें मीडियन अम्बिलिकल फोल्ड आता है और मीडियन अम्बिलिकल फोल्ड आता है। तो उसको याद कैसे रखेंगे, ट्रू लिगामेंट है ना, तो दो लेटरल मीडियल प्यूबोप्रोस्टैटिक प्रोस्टैटिक है। तो पहला दो लेटरल और मीडियल प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट है, लेटरल ट्रू लिगामेंट है, मीडियल के बदले पोस्टीरियर ट्रू लिगामेंट, और एक मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट है। इसके अंदर क्या है, लेटरल और पोस्टीरियर ट्रू ट्रू था, इसके अंदर लेटरल पोस्टीरियर फॉल्स फॉल्स लिगामेंट है। और मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट था, इसके अंदर मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट भी है और मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट भी। तो ये डायग्राम में देख सकते हैं कि आपका रेक्टम है, ये आपका सर्विक्स है, ये आपका ब्लैडर है। तो लेटरल लिगामेंट ऑफ द रेक्टम यहाँ से जाता है, फिर इसकी जिसके अंदर मीडियल रेक्टल वेसल्स होते हैं। फिर लेटरल ट्रू लिगामेंट ये है, जो यूरिनरी ब्लैडर के जो लेटरल ट्रू लिगामेंट है, और ये प्यूबोवेसाइकल लिगामेंट है यूरिनरी ब्लैडर का। नाउ आर्टेरियल सप्लाई, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेसाइकल आर्टरी, यूरिनरी ब्लैडर को सप्लाई कर रही है इसलिए उसका नाम वेसाइकल आर्टरी है। विच इज अ ब्रांच ऑफ एंटीरियर ट्रंक, एंटीरियर ट्रंक का ब्रांच है, विच इज अ ब्रांच ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी, मतलब इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांच आपको सप्लाई कर रही है अपने ब्लैडर को। जो किसकी ब्रांच है, एंड उसकी एक ब्रांच जो एंटीरियर ट्रंक है, उसकी भी एक और ब्रांच जो सुपीरियर इंफीरियर वेसाइकल आर्टरी है। एडिशनल सप्लाई ऑब्चुरेटर इन इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी, ग्लूटियल आर्टरी जो आपके हिप का जो ग्लूटियल मसल होता है उधर से जाती है ग्लूटियल आर्टरी, और ऑब्चुरेटर मसल की दोनों की आर्टरी ये भी सप्लाई करती है अपने ब्लैडर को। वेनस सप्लाई, लाइनिंग ऑन द इंफीरियर लेटरल सरफेस ऑफ द ब्लैडर, वेसाइकल वेनस प्लेक्सस, इंफीरियर लेटरल सरफेस पे वेसाइकल वेनस प्लेक्सस सप्लाई करते हैं। जो वेसाइकल वेनस प्लेक्सस से ड्रेन कहाँ करते हैं, इंटरनल इलियक वेन्स में। यहाँ पे पेल्विक के जो भी ऑर्गन्स होते हैं ना, इंटरनल इलियक वेन्स में मोस्टली ड्रेन करते हैं। लिम्फेटिक्स ड्रेन्स इनटू द एक्सटर्नल इलियक नोड्स में ड्रेन करते हैं। नर्व सप्लाई पैरासिम्पैथेटिक, सिम्पैथेटिक, सोमैटिक एंड सेंसरी। पैरासिम्पैथेटिक इफरेंट एंड इफरेंट होती है जो S2 S3 S2, जो मोटर होती है टू द डेड्रोसिल मसल। डेड्रोसिल मसल क्या, जो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर एक मसल होता है जो यूरिनरी ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए काम होता है। अब ये कॉन्ट्रैक्शन कौन कराता है, मसल ही कराता है। तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ये मसल प्रेजेंट होती है, जिससे कॉन्ट्रैक्शन होता है, यूरेथ्रा रिलैक्स होता है और यूरिन पास आउट होता है। तो इसको कौन सप्लाई करता है, इफरेंट नर्व सप्लाई करता है। सिंपैथेटिक में T12 टू L2 होता है, जो इनिबिटरी होता है डेट्रोसिल मसल का। अभी जो सिंपैथेटिक होते हैं ये डेट्रोसिल मसल को इनिबिट करते हैं, बट मोटर होता है टू द प्री प्रोस्टेटिक स्फिंक्टर्स को। सोमैटिक पिटेंटल नर्व S2 S1 जो सप्लाई करता है स्फिंक्टर यूरेथ्रा को। सेंसरी नर्व जो पेन सेंसेशन कॉज करता है फॉर द डिस्टेंशन ऑफ द ब्लैडर वॉल। जब ब्लैडर फुल हो जाता है तो पेन होता है ना, हैवीनेस होता है, ये किसकी वजह से होता है, सेंसरी नर्व्स की वजह से होता है, विच इज कैरिड बाय पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्व। अब इंटीरियर ऑफ द ब्लैडर, ये ब्लैडर का इंटीरियर का डायग्राम है। इसके पास बहुत सारी एरियाज होते हैं। एक तो सबसे पहले स्मॉल ट्रायंगुलर एरिया जो लोअर पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द ब्लैडर के अंदर होता है। ये स्मॉल ट्रायंगुलर एरिया जो लोअर पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द ब्लैडर के होता है, जिसको म्यूकोसा इसका स्मूथ होता है,
ड्यू टू द फर्म अटैचमेंट ऑफ द मस्कुलर कोट ऑल्सो कॉल्ड एज ट्राइगोन ऑफ द ब्लैडर। ये छोटा सा ट्रायंगुलर एरिया, इसको ट्राइगोन ऑफ द ब्लैडर भी बोलते हैं। ये कहाँ पे होता है? बेस में होता है, लोअर पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द ब्लैडर में। इसके जो मस्कुलर कोट होता है ना, वो फर्म अटैचमेंट होती है मसल से, और म्यूकोसा इसका स्मूथ होता है, क्योंकि मसल से तो म्यूकोसा स्मूथ तो रहेगा। अभी ट्राइगोन ऑफ द ब्लैडर, अभी ट्राइगोन ऑफ द ब्लैडर को और डिटेल में बोला है। अपेक्स जो होता है, अभी देख ही रहो, ये इसका बेस हुआ, ये उसका अपेक्स है। अपेक्स नीचे डाउनवर्ड होती है। फिर इंटरनल यूरेथ्रल ऑरिफाइस ओपन इनटू द यूरेथ्रा। इसके अंदर जो इंटरनल यूरेथ्रल ऑरिफाइस है वो यूरेथ्रा के अंदर ओपन होता है। देन ये इसका इंटरनल यूरेथ्रल ऑरिफाइस जो यूरेथ्रा में ओपन होता है। इसके बाद यूरेटर ओपन्स करती है एट द पोस्टीरियर लैटरल एंगल ऑफ द ट्रायंगल। अभी ये जो यूरेटर है, पोस्टीरियर लैटरल, एक तो लैटरल के साइड है, ये दोनों इस तरफ लैटरल हुआ, इसका ये दोनों मीडियल हुआ। अभी लैटरल और पीछे की तरफ है, लैटरल और पीछे की तरफ से जो यूरेटर ओपन होते हैं ट्राइगोन ऑफ द ब्लैडर में। ओपनिंग जो होती है 2 सेंटीमीटर अपार्ट इन द एम्प्टी ब्लैडर एंड 5 सेंटीमीटर अपार्ट इन द डिस्टेंडेड ब्लैडर। अभी अगर जैसे कि 2.5 सेंटीमीटर एम्प्टी ब्लैडर में क्यों है? क्योंकि एम्प्टी ब्लैडर है तो ज़्यादा भरा हुआ नहीं है, छोटा पिच का पचका हुआ है, तो उसमें 2.5 सेंटीमीटर ही अपार्ट। अभी 5 सेंटीमीटर अपार्ट डिस्टेंडेड ब्लैडर में क्यों? क्योंकि ब्लैडर है वो भर गया, तो जो ट्राइगोन होगा वो भी स्ट्रेच होगा ना, इसलिए इसमें थोड़ा दूर है, 5 सेंटीमीटर अपार्ट इन डिस्टेंडेड ब्लैडर में। स्लाइट एलिवेशन क्या होता है? पोस्टीरियर टू यूरेथ्रल ऑरिफाइस व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय मीडियन लोब ऑफ प्रोस्टेट कॉल्ड एज यूव्यूला वेसिकल। ये आपका ओव्यूला वेसिकल है। ये किसके वजह से होता है? प्रोस्टेट के मीडियन लोब की वजह से होता है। पोस्टीरियर टू द यूरेथ्रल ऑरिफाइस, ये जो यूरेथ्रल ऑरिफाइस है उसके पीछे, और किसकी वजह से होता है? जो मीडियन लोब ऑफ द प्रोस्टेट की वजह से एक एलिवेशन आ जाता है, जिसको अपन यूव्यूला वेसिकल बोलते हैं। अभी जो बेस ऑफ द ट्राइगोन है विच इज फॉर्म बाय द इंटीरियर यूटेराइन रिच, ये जो बेस है इसको अपन इंटीरियर यूटेराइन रिच बोलते हैं। इससे फॉर्म होती है विच इज प्रोड्यूस बाय इनर लॉन्जिट्यूडनल मसल कोट ऑफ 2 यूरेटर। अभी 2 यूरेटर का जो इनर लॉन्जिट्यूडनल मसल कोट है वो बनाता है ये इंटर यूटेराइन रिच को। The clinical anatomy, the interior of bladder can be examined in living by cystoscope. Cystoscope डाल के अपन bladder का examination कर सकते हैं। Chronic obstruction to the outflow of the urine by an enlarged prostate causes hypertrophy of bladder leading to trabeculated bladder. Benign prostate hyperplasia बोलते हैं जिसको, इसके अंदर प्रोस्टेट ओल्ड एज में जाके प्रोस्टेट ग्लैंड है वो एनलार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से वो कभी कभी यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर बहुत सारा प्रेशर डालता है। ज़्यादा प्रेशर डालने की वजह से जो ज़्यादा प्रेशर डालने की वजह से जो यूरिनरी ब्लैडर है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, जिसके वजह से पेन होता है और यूरिन का आउटफ्लो कम होता है। यूरिनरी ब्लैडर इज द वन ऑफ द साइट ऑफ द स्टोन फॉर्मेशन इज द यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हियर। अभी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर अगर यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो गई तो क्या होगा? स्टोन फॉर्मेशन हो जाएगा। So this was all about urinary bladder. It is a very important topic which comes for university exam. Even in my university exam, it has came for 10 marks question. So understand it clearly, and it's very easy. It's not tough. And if you like my video, subscribe to my channel.